Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a special video on the Kurukshetra monthly compilation and I'll be discussing Kurukshetra for the month of October 2020. So this edition is mostly with regards to the water conservation and we'll be discussing the important article that has been reported with respect to the prelims and mains examination. So let's get started. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. So let's get started with the first article, that is Water Conservation Initiative and Future Strategies, right? So whatever with regards to the water conservation is important that has been reported in the Kurukshetra, I'll be discussing that. So the first, as you know, that in the Constitution of India, water and sanitation is a state subject. आपको पता होगा ये एक state subject के अंदर आती है under the list 2 of the 7th schedule. जितनी भी जो bifurcation की गई है list की, चाहे 3 list है उसमें, concurrent list, union list and state list, right? So these 3 lists are there. So water and sanitation is a part of state subject in the schedule list 2 of the 7th schedule. Now responsibility की अगर बात करें, जो planning, funding, implementation of water resources sanitary project है, that lies with the state government. तो सारी जिम्मेवारी जो है that is completely with the state government. Now country is generating 140 billion cubic meter of waste water annually. तो किस तरह से water को conserve किया जाए, because recycling is very important when it's come to the water conservation. Now impact of mismanagement of water की अगर बात करें क्या क्या impacts हैं, तो सबसे पहले contamination of the groundwater is one of the major factor. Now the second is poor liquid waste management, because in India we do not have tool or equipment so that we could have proper waste management. Now the third is poor sanitation condition. जो sanitation condition है that is still not good. अभी कुछ दिन पहले ही basically जो भी स्वच्छ भारत अभियान लाया गया उसके तहत बहुत सारे टॉयलेट्स बनाया गया इंडिया में, बट बिफोर दैट वी डू नॉट हैव प्रॉपर सैनिटेशंस, राइट? एंड पुअर hygiene habits is also one of the condition that has led to the mismanagement of water in India. Now I'll be discussing some important government initiatives जो गवर्नमेंट ने कुछ important काम किए हैं इस चीज को लेकर के. So 2019 में एक मिशन प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, इट्स नोन एज जल जीवन मिशन, और ये बेसिकली जो पूरा एम था दैट इज टू सप्लाई पाइप्ड वाटर टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क मिशन व्हिच हैज एम्ड टू गिव पाइपलाइन वाटर इन द ईच हाउसहोल्ड. ना विजन की अगर बात करें तो हर एक हाउसहोल्ड पे ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई एडिक्वेट क्वांटिटी में देना लॉन्ग टर्म बेसिस पे, उसके बाद भी अफोर्डेबल सर्विस के साथ, ये पूरा एम है इस जल जीवन मिशन का, राइट? सो व्हेन यू आर राइटिंग इन मेंस एग्जामिनेशन you to have to be thorough with the aim and main rationale of the mission. तो आप ये लिख सकते हैं उसमें. Now the program is implemented as a resource sustainable measures on the mandatory elements, जहाँ पे recharge and reuse पे भी ध्यान दिया गया. जो grey water waste है basically ऐसे जो भी waters जो कि हमारे daily use में waste हो जाते हैं, चाहे वो washrooms के waste हों या फिर बाथरूम्स के वेस्ट हो, तो इस तरह के जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है. एंड एट द सेम टाइम द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया. एंड द जल जीवन मिशन इज बेस्ड ऑन द कम्युनिटी अप्रोच ऑफ द वाटर. यहाँ पे कम्युनिटी अप्रोच रखी गई है ताकि सारे लोग मिल करके इस मिशन को सक्सेसफुल बना सके. Now the second important initiative is जल शक्ति अभियान. This is under basically अगर बात करें more than 6.5 करोड़ लोग इसके पार्ट हो चुके हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनके दिस कंप्राइजेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटीज. तो ये सारी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है. कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की जो ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहती है, जिसकी हायरार्की बॉटम अप अप्रोच की है, वहां पे यू नीड एवरी स्टेप्स टू फाइंड एंड एवरी स्टेप्स टू काउंट, राइट? तो हर जगह पे सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो पंचायत हो, विलेज हो, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हो या सिविल सोसाइटी हो. Now it is now focusing on more on irrigation water and conservation with caution, जहाँ पे इसको strictly implement करने की बात की गई है. जो use of face covers है, mask है, necessary precautions जो हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो जल शक्ति अभियान है that would be again implemented, और irrigation और water conservation is one of the main aim of the जल शक्ति अभियान. Now तीसरी जो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट की तरफ से, that is
Atal Bhujal Yojana. This is envisaged to have a sustainable groundwater management, mainly through the convergence among the various ongoing schemes. जितने भी और ऐसे schemes चल रहे हैं जो sustainably groundwater को manage करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे का एक amalgamation है, and at the same time it would converge every scheme that is ongoing. And it endeavors to facilitate the efficient implementation of the various ongoing central statistical scheme. Participating states जो हैं वो भी इसमें पार्ट करेंगे और पूरे स्कीम्स के साथ कन्वर्ज करके अटल भूजल योजना के साथ गवर्नमेंट आने की कोशिश कर रही है इस पे. Now this will also play a key role in draft proofing, thereby improving the climate resilience in the सेलेक्ट वाटर स्ट्रेस्ड एरिया. जहाँ पे वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है वहाँ पे ड्राउट प्रूफिंग की जाएगी सो दैट कि क्लाइमेट रेजिलियंट बन सके और जहाँ भी वाटर की कमी है उसको फुलफिल किया जा सके. राइट. नाउ कमिंग टू द अदर टॉपिक दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शंस. जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हो रही है आज की डेट में उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है और कितनी एडवर्स इफेक्ट हो रही है. सो दिस मशीन यू कैन सी इट एक्सट्रैक्ट द ग्राउंड वाटर एंड जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट के टाइम में जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स उनका कहना है कि इंडिया में जो ग्राउंड वाटर की लेवल है जो टेबल है वो बहुत तेजी से डिप्लेक्ट हो रही है. नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट. फर्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ द वाटर टेबल्स, रिड्यूस अवेबिलिटी ऑफ द वाटर इन द वेल्स. जो कुएं हैं जो नदियाँ बेसिकली जो भी शहरों में जो बड़े बड़े कुएं बनते हैं उनमें भी वाटर लेवल कम होने की वजह से वहाँ की वाटर अवेबिलिटी कम हो गई है. डिग्रेडेशन ऑफ द रिसोर्स मैनिफेस्टेड इन द कंटेमिनेटेड विद द हैवी मेटल, जैसे कि आयरन हो, आर्सेनिक हो, कैडमियम हो एंड फ्लोराइड हो. सो दीज आर द हैवी मेटल्स दैट हैज बीन फाउंड. और यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू द वाटर पॉल्यूशन. राइट. वाटर में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कंटामिनेशंस हैं उसको लेकर के ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हुए हैं. नाउ कंपोजिट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स सरकार की तरफ से लाई गई है एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स विच अगेन हेल्प at how the comparative efforts of the water conservation is going. So नीति आयोग ने इसको डेवलप किया है to compare the efforts of the various states in the water conservation. और जो CWMI है वो 9 broad sectors पे काम करेगी और 28 different performance indicator हैं इसके. राइट. 28 indicators हैं और 9 broad sectors हैं. राइट. एंड दिस वुड बी अगेन कुछ इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ किन किन चीज़ों को ये कवर करेगी. सो दिस इंक्लूड ग्राउंड वाटर, restoration of the water bodies, irrigation, farm practices, drinking water policy and governance. Right. So these are some of the important things CWMI would be looking for. Now जो 28 की performance indicators हैं they are uploaded by the state government की जिम्मेवारी है कि they would be uploading the things on the online web portals. And the index has been quite successful in sensitizing the state about implementing the water scarcity in the nation. So जो आज ज़रूरतें हैं या जिस तरह की परेशानी आ सकती है भविष्य में उस चीज़ को अवगत कराते हुए राज्य सरकार को ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो अपनी जिम्मेवारी को समझे एंड प्रोएक्टिवली दे हैव टू वर्क विद रिगार्ड्स टू द वाटर कंजर्वेशन. Now since the launch of the index 80% of the state has shown improvement. तो बहुत सारे स्टेट्स गवर्नमेंट ने इंप्रूवमेंट शो की. ऑलमोस्ट 80% का रेशियो है जिन्होंने इसमें अपनी परफॉर्मेंस अच्छी शो की है. राइट. सो स्टेपफुली एंड ग्रेजुअली इट वुड बी वर्किंग हार्डर बट अभी के लिए जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है वो ओवरऑल की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है. नाउ स्टेट स्पेसिफिक मेजर्स की अगर बात करें कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग मेजर्स लिए उसके बारे में मैं आपको बता दूं. सो जलयुक्त सिवर है महाराष्ट्र में, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान, नीरू चिटू इन आंध्र प्रदेश, मिशन काकनया इन तेलंगाना, सुजलाम सुफलाम है आपके गुजरात में, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर स्कीम इन कर्नाटका. सो इफ यू आर राइटिंग a case study in general studies paper 4 and it is being asked about the state initiative या example देना चाहते हैं तो you can quote this. Right. Now coming to the state specific measures और कुछ important states ने जो अलग से measures लिए हैं तो पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब has Preservation of Subsoil Water Act 2009 which banned early sowing of the paddy in the nursery and transplantation of the spackling through the scheme of Pani Bachao Paisa Kamao. Right. So this is a scheme which is being delivered by the Punjab state government.
उसके अलावा महाराष्ट्र ने ग्राउंड डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट एक्ट 2009 लाया, जो कि प्रोहिबिट करती है ड्रिलिंग ऑफ डीप वेल्स विद इन द नोटिफाइड एरियाज ऑफ द एग्रीकल्चर यूजेस, राइट। तो ये कुछ स्टेट स्पेसिफिक मेजर्स थे। उसके अलावा कुछ नई स्ट्रैटेजी टू सपोर्ट द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन वाटर सेक्टर, क्योंकि PPP के बिना वाटर सेक्टर में सरकार के लिए एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट करना काफ़ी मुश्किल का काम था। सो दैट इज़ वाई द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। तो कुछ मैं एग्जांपल आपको दूंगा दूसरे अदर कंट्रीज़ के भी। तो यूनाइटेड स्टेट्स में दे इवॉल्विंग फंड फॉर द एग्जांपल एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग मॉडल, और यूएस कांग्रेस ने इसको पास किया ताकि इसमें कैपिटलाइजेशन बढ़ सके, असिस्टेंट हो सके, अपग्रेड कर सके वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज को भी, राइट। एंड दिस अल्टीमेटली हेल्प टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट ऑफ द वाटर क्वालिटी। And it also supports the longer transition and amplify the flexibility of the long water financing। तो ताकि जो लोकल लेवल पे जो चीज़ों को प्रमोट करनी है वाटर सेक्टर को, या फिर जिस तरह से फाइनेंसिंग को इंक्रीज करनी है, सो दैट कैन बी डन विद द सेल्फ सफिशिएंसी। सो दैट इज वाई इंडिया ऑल्सो रिक्वायर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ द वाटर सेक्टर, राइट। Now moving ahead to the other topic, that is impact and progress of Namami Gange program. So this is again one of the important scheme by the government of India. So Namami Gange program is an integrated conservation mission approved as a flagship program, जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने 2014 को इसको अप्रूव किया था। जो पूरी एम है इस नमामि गंगे प्रोग्राम की कि किस तरह से जो अबेटमेंट है ऑफ पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन फॉर द रीजनरेशन ऑफ नेशनल गंगा रिवर, जो हमारी नेशनल गंगा रिवर है, उससे पहले भी इसमें बहुत सारे स्कीम्स लाए गए हैं और एक्चुअल में क्या काम करने की ज़रूरत है ताकि जो गंगा रिवर है उसको रिजनरेट किया जा सके, उसको कंजर्व किया जा सके। सो इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री भी बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ताकि इसके काम को ये स्पेसिफिकली मॉनिटर कर सके, राइट। नाउ अबाउट नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में आपको अगर मैं बताऊं, सो दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा, और एक इंटीग्रेटेड मिशन है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ गंगा एंड इट ट्रिब्यूटरीज। तो सिर्फ गंगा ही नहीं, उसके अलावा जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है थ्रू द नमामि गंगे प्रोग्राम। एंड इट फोकसेस ऑन द अरावल एंड निर्मल धार इन मेंटेनिंग द जियो हाइड्रोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। और इंटीग्रेटेड रिवर वॉशन बेसिन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इट फॉलोड द मल्टी सेक्टरल एंड मल्टी सीजन इंटरवेंशन। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको उसके बारे में नाम बता दूं। पहला है पॉल्यूशन एबेटमेंट, जहां पे निर्मल गंगा बनाया गया। दूसरा है इंप्रूविंग इकोलॉजिकल एंड फ्लो, दैट इज एवरल गंगा। द थर्ड इज स्ट्रेंथनिंग पीपल रिवर कनेक्ट, दैट इज जन गंगा। एंड द लास्ट इज फैसिलिटेटिंग डाइवर्सिटी रिसर्च, साइंटिफिक मैपिंग, स्टडीज, एफर्ट्स एंड बैंड्स ऑन द policy formulation. This is Gyan Ganga, right? So these are some of the approaches, the multi-sectoral approach और multi-agency intervention जहाँ पे नमामि गंगे प्रोग्राम को सक्सेस बनाया जाएगा। Now what is the importance of the Ganga river? So cultural and spirituality mainstay is one of the important segment of the Ganga river, and it provide economic subsistence, water and food security to more than 43% of the total population. तो पूरे इंडिया की जो 43% की जो पॉपुलेशन है उसमें वाटर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी गंगा रिवर से ही मिलती है, बिकॉज इरिगेशन वाटर इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गंगा रिवर ओनली। एंड एज अ पार्ट ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया, it is again very important that Ganga river has a spirituality connect and representation of India identity and culture, right? So it is more of the Indian identity which has been intact with the river Ganga. Now pollution abatement या निर्मल गंगा की अगर बात करें तो किस तरह से इस पे काम की जा रही है। So pollution abatement measures comprehensively अगर बात करें तो pollution में municipal sewage है, industrial influences है, municipal solid waste, rural sanitation, non-point resources, these are agriculture runoff, open defecation and unburnt bodies। ये सारी चीज़ों में पॉल्यूशन जो निर्मल गंगा है इसमें ये कोशिश है कि ये जितने प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्यूशन किया जाए, इनको सॉल्व किया जाए, एंड एट द सेम टाइम द क्वालिटी ऑफ द गंगा रिवर हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड। तो मेन यहाँ पे है कि किस तरह से जो क्वालिटी है उसको भी इंश्योर किया जा सके। नाउ सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अंडर नमामि गंगे a total of 151 सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैज़ बीन सैंक्शन, और बेसिकली जो ट्रीटमेंट कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाई जाएगी
और rehabilitation and upgradation of old infrastructure would be definitely required. Now focus on reuse and retreating of water, because I have told you retreating is again very important. तो जो हमारी नेशनल मिशन गंगा है वहाँ पे एक्टिवली ये परस्यू किया गया कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है दैट शुड यूज द ट्रीटेड वाटर. जो ट्रीटेड वाटर है उसको ट्रीट करके वी कैन हैव अनदर वाटर विच कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पसेस. स्पेसिफिक मैनेजमेंट डिस्चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर बीइंग यूज्ड फॉर ऑल प्रोजेक्ट लाइक रामाना इन वाराणसी एंड जगजीतपुर इन हरिद्वार. और एक सर्कुलर इकोनॉमी भी इसे क्रिएट हो सकती है फॉर सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबल ऑप्शंस, राइट. तो सैनिटेशन और सस्टेनेबल ऑप्शन के लिए भी ये काफी अहम है. नाउ इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन की अगर बात करें, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रही है उसके वजह से जो ग्रॉसली पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज है जिसको GPI भी कहते हैं, they are identified as the annual inspection and independent expert institutions, right. तो common influent treatment plant बनाई गई है that is under construction, right. ये कानपुर में है, that is जमाऊ रनी clusters. तो clusters बनाए गए हैं ताकि खास करके अगर मैं कानपुर की बात करूं तो वहाँ पे लेदर एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है कानपुर में. सो उसके वेस्ट को कैसे ट्रीट किया जाए, उसके पानी को कैसे ट्रीट किया जाए जो भी फ्लोज हो रही है, एंड अगेन दैट कैन बी अनदर यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस और किसी दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं. एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक कैरेक्टर वे डेवलप टू प्रमोट द ग्रीनर टेक्नोलॉजी, रिड्यूस इन्फ्लुएंस जनरेशंस एंड इम्प्रूव द सेवरल इंडस्ट्रीज. नाउ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मिशन हैज डायरेक्टेड to focus on the solid waste management of ghats and vicinity of the river as regular cleaning and banking. और जो सॉलिड वेस्ट है, सिंगल यूज प्लास्टिक है जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया में, तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू इस स्पेसिफिक टारगेट की गई है कि सिंगल बैंड जो प्लास्टिक्स हैं उसको बैंड किया जाए. एंड प्रोजेक्ट ऑफ घाट क्लीनिंग, बेसिकली अगर वाराणसी की बात करें या हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, ये सारे कुछ ऐसे रीजन्स हैं, हरिद्वार, कानपुर, बिथोर, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज और वाराणसी, ये इनको टारगेट किया गया ताकि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से किया जा सके. Now talking about the rural sanitation is again important. So this would facilitate the construction of 11 lakh household toilet, or this would be by the Ganga Bank request. This is household toilets, right? Now water quality, how the water quality and quantity can be improved. So this can be done by the Central Pollution Control Board, जो कि मॉनिटर करेगी वाटर क्वालिटी की through 97 manual stations बनाए गए हैं. And this would be on the real-time water quality monitoring that has been introduced in the 36 station and 40 more pipeline. And the important parameter is dissolved oxygen. जो DO होती है उसके थ्रू ये कैलकुलेट करेंगे कि वाटर में कितने मिलीग्राम ऑफ लीटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व है ताकि उसकी क्वालिटी पता चल सके. तो इस तरह के जो डिस्कशन है वो आपके साइंस के क्वेश्चंस के लिए भी काफ़ी हद तक मदद करेंगे. साइंस फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. And Kumbh in the Prayagraj 2019 has witnessed the improved water quality and cleanliness, right? So this edition of discussion might get longer for you, but it is very important कि आप सारे पॉइंट को समझें because मेंस में किसी भी तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. Now coming to the other topic, that is sustaining ODF India. जो ODF को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी, किस तरह से ODF प्रमोट किया जा सकता है इंडिया में, हाउ इट कुड बी अचीव्ड, तो उसके तरफ सरकार ने कोशिश की है. Now स्वच्छ भारत मिशन जो है, this is the phase 2 that has been launched with the objective of leaving no one behind without access to toilet. सब लोगों को access to toilet दिलाना, and the government has tried to ensure कि everyone has the affordable toilet in their home. And it supports Gram Panchayat in implementing the solid and liquid waste management initiatives, including the bioorganic waste, grey water, fecal saltages and plastic wastes, right? तो ये सारे चीज़ों को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके, इसकी क्वालिटी, एंड इट शुड ऑल्सो इंश्योर कि ये जो मैनेजमेंट है ये पूरी तरह से ग्रामीण लेवल पे भी इसको अचीव किया जा सके. नाउ another important objective of Swachh Bharat Mission Phase 2 is to sustain the ODF status in each village. सारे विलेज जो भी इंडिया में है उनको एक प्रॉपर ODF का स्टेटस मिलना चाहिए, और ये जो टारगेट रखी है गवर्नमेंट वो 2022 तक की है, बट आई फील इट वुड बी अचीव्ड इन कमिंग 2 to 3 more years, राइट. अभी भी ऑलरेडी इसके सक्सेस काफ़ी सही है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द विलेजेस हैज बीन डिक्लेयर एज ODF, बस और काम करने की जरूरत है ताकि सारे विलेज को ये स्टेटस मिल सके. नाउ क्या क्या चैलेंजेस हैं स्वच्छ भारत मिशन में.
तो कुछ कंटेक्चुअल टेक्निक्स हैं अगर मैं आपको बताऊं सॉलिड और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। सो दिस हैज़ द सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, रीसाइकिल और रीयूज। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कैरेक्टराइज करने की जरूरत है, एक कैटेगरी बनाने की जरूरत है, सो दैट इट कैन अगेन बी चैनलाइज्ड। नाउ एसबीएम की अगर मैं आपको स्कोप बताऊं, क्या क्या स्कोप होनी चाहिए, या क्या फोकस है इसकी। सो ऑब्जेक्टिव इज दैट ओडीएफ कम्युनिटीज है, इट शुड इंश्योर सैनिटेशन प्रैक्टिस। उसमें कुछ दो की कंपोनेंट्स बताए गए हैं। फर्स्ट इज टू सस्टेन द ओडीएफ एंड सेकेंड इज सस्टेनेबल लिक्विड एंड वेस्ट मैनेजमेंट, राइट। तो अगर सस्टेनेबल ओडीएफ की बात करें तो यहाँ पे इट हैज टू इंश्योर कि जो रिमेनिंग हाउस होल्ड हैं जिनको एक्सेस टू टॉयलेट दी गई है या फिर एग्जिस्टिंग टॉयलेट है, ये सारे के कम्युनिटी सैनिटेशन बनाया जाए और एक्सेस टू टॉयलेट हर एक लोगों की होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज व्हाट द एंटायर एम ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन आल्सो इज, टू गिव एक्सेस टू टॉयलेट टू एवरीवन। और अगर सॉलिड और वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इसकी जो फोकस है वो कुछ 4 इंपॉर्टेंट चीजों पे है। सो द फर्स्ट इज बायो ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट, सेकेंड इज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, liquid waste management and fecal sludges management. So these are the 4 important solid and waste management that is administered under the Swachh Bharat mission. Now role of पंचायती राज, अगर PRI की बात करें तो PRI एक बहुत ही बड़ा अहम रोल अदा कर सकती है in making this program success. So this constitutional provisions जो है PRI की, वो empower करती है उनको कि वो उस पूरे प्लानिंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट करे। और 15th फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने भी कमीशन ये कहा है कि जो ये इनिशिएटिव्स है वो बिना लोकल कन्वर्जेंस को और पीआरआई को स्ट्रेंथन करके अचीव नहीं की जा सकती है। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल, राइट। सो स्वच्छ भारत मिशन हैज कंडेम्ड, रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्वच्छ भारत मिशन कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जिला पंचायत और जिला परिषद भी जिसको कहते हैं ना, बेसिकली जिला पंचायत और जिला परिषद। इट वुड बी को चेयर बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट। सो लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे अपनाने की जरूरत है ताकि एक्चुअल काम हो सके। नाउ इट विल फर्दर प्रोवाइड फॉर द अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेशन एंड वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर इलेक्टोरेट्स, एंड इट वुड फर्दर इंश्योर सेफ वॉश सर्विसेज फॉर द लोकल बॉडीज। Now other topic is Har Ghar Jal. This is again one of the important initiatives by the government of India. तो नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि इंडिया इज फेसिंग द वर्स्ट वाटर क्राइसिस इन द हिस्ट्री विच इज थ्रेटनिंग मिलियन ऑफ सिविल्स एंड लाइवलीहुड। और ये क्राइसिस इतनी ज़्यादा वर्स हो सकती है कि 2030 तक जो वाटर की डिमांड है, जो अवेलेबिलिटी है, वो दोगुने से ज़्यादा कम हो सकती है। नाउ दिस इज फर्दर created severe water scarcity of the crores of the people and approximately 6% जो टोटल जीडीपी की है उसके भी लॉसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वाटर एंड डिक्लाइनिंग वाटर लेवल या वाटर की जो क्वालिटी जिस तरह से खराब हो रही है, राइट। तो वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, बट वी एज अ सिटीजन, एज एन एनलाइटेंड सिटीजन, हमारी और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी इस चीज को समझें। तो वाटर अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो इंडिया हैज मोर देन 80% ऑफ द वाटर टोटल पॉपुलेशन, but it has 4% of the world remaining water resources and farmer consume almost 90% of the available groundwater. जितनी भी water present है उसमें 90% consumption जो है वो farmer से होती है। Now National Sample Survey Organization है NOSA की जो 76 राउंड की जो डेटा है उनके मुताबिक that 1 in every have 21.4% of पाइपलाइन ड्रिंकिंग वाटर। तो अभी जो टारगेट है वो 21.4% तक अचीव हो चुकी है। We have to improve it gradually. और according to the Jal Shakti Mission data, by 2030 India industry would be used 4 times water than they are using today. तो आने वाले समय में जो वाटर की ज़रूरतें हैं वो 4 टाइम्स मल्टीपल होकर के डिमांड उसकी बढ़ेगी और उस ज़रूरत को उस टाइम पे पूरा करना काफ़ी मुश्किल होगा बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारी जो ग्राउंड वाटर लेवल है, जो टेबल है, दैट इज डिक्रीजिंग ड्रास्टिकली, राइट। तो वी हैव टू वर्क ऑन दिस सो दैट आने वाले टाइम में एक सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर भी रह सके। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी। Now the other is water and government initiatives. तो government sees management of water as a holistic manner. Government ने एक नई मिनिस्ट्री भी बनाई है। This is Ministry of जल शक्ति 2019 में इसको बनाया गया ताकि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वाटर रिलेटेड उसको इंटीग्रेट किया जा सके और पूरी सप्लाई चेन को एक बेसिकली एक दिस शुड बी देयर इन द वन रूफ, एक छत के अंदर लाया जा सके,
एक सिंगल मिनिस्ट्री होगी जो कि मल्टीपल चीज़ों को अपने अंदर कंट्रोल करके काम करेगी। पहले क्या थे, अलग अलग मिनिस्ट्रीज थी, अलग अलग बॉडीज बनाई गई थी जो रेगुलर करती थी, तो अकाउंटेबिलिटी खराब हो गई थी उस टाइम पे, राइट। सो गवर्नमेंट हैज सेड कि अब एक मिनिस्ट्री होगी जो सारी चीज़ों को रेगुलेट करेगी। And the key role of the new ministry created is to assure the availability of the potable water for all, right? सारे घरों में जो पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, कई लंबे ट्रैवल करके उनको पानी घर में ड्रिंकिंग वाटर लाना पड़ता था, उनकी पोर्टेबिलिटी को बढ़ाया जाए, उनके प्रॉक्सिमिटी एरिया में उनको वाटर अवेलेबल करवाई जाए। Now Jal Jeevan Mission, हर घर जल, I have told you in the beginning also. So 2024 तक पाइप्ड वाटर लाने की बात की गई है। 55% ऑफ जो टोटल पॉपुलेशन उनको ड्रिंकिंग वाटर देने की बात की गई है इसमें। एंड द मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, which I have told you in the beginning. The same is here, right? Now the other topic is Swachh Bharat Mission. This is again one of the important mission of the government of India. So in 1954, talking about the background, रूरल सैनिटेशन की जो प्रोग्राम है वो इंडिया में स्टार्ट हुई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही इसके बारे में कुछ बातें कही गई थी। बट इन 1981 द कंक्लूसिव सेंसस व्हिच कम अप इन द रूरल सैनिटेशन दैट हैज कम अप टू से अप दैट द कवरेज जो है दैट इज ओनली 1%। तो अगर 1981 की बात करें तो उस सेंसस में ये हमें पता चला कि सिर्फ 1% रूरल सैनिटेशन के पास में जो रूरल एरिया है वहाँ पे सैनिटेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की गई हैं। और जो लैक ऑफ सैनिटेशन है दैट हैज अगेन लीड टू द मेनी डिजीजेज इन इंडिया लाइक डायरिया इन चिल्ड्रन दैट इज अंडर 5 years of age, resulting in the stunning of the child, several preventable death that can be prevented in India that has not been done, उसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई। And sanitation is again also critical aspect of ensuring safety and dignity of women, right? Because it is very important कि हर एक महिला, हर एक women, they should have their the basic amenities here with regards to the sanitation and toilets that should be there in the home itself. Now coming to the evolution of sanitation program, 1986 में Central Rural Sanitation Program लाई गई। I'm not getting into the details of it, but you have to know कि कौन कौन से प्रोग्राम कब कब आए और किस chronology में गवर्नमेंट ने काम किया है। Now in 1999, government has introduced total sanitation campaign with a visions to eradicate the open defecation by 2017। और उसके बाद फिर निर्मल भारत अभियान आया, निर्मल ग्राम पुरस्कार जिसके नाम से भी जानते हैं, संपूर्ण स्वच्छता आंदोलन स्कीम गवर्नमेंट ने लाया। This was in 2006 where TSA was merged with the इंदिरा आवास योजना। जो इंदिरा आवास योजना था IAY, उनको मर्ज कर दिया गया टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम के साथ। Now in 2012, government has launched Nirmal Bharat Abhiyan with aims to provide 100% accessible toilets to all household. एंड आफ्टर दैट निर्मल भारत अभियान के बाद एक कन्वर्जेंस लाई गई महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसको मनरेगा भी कहते हैं, उनके साथ दोनों प्रोग्राम को कन्वर्ज करके जो पूरी टारगेट्स थी 100% की उसको अचीव करने की कोशिश की गई। And after that, the Nirmal Bharat Abhiyan updated with the total sanitation program to renew the strategy objective to accelerate the sanitation coverage in the rural areas. Now after that we have Swachh Bharat Abhiyan which was launched in 2014. यहाँ पे जो पूरा एम था that is to make India ODF और मिशन was again कुछ इसके सब मिशंस भी रखे गए। The first target was to construct 67 lakh individual household toilets under Swachh Bharat Mission ग्रामीण। दो हैं इसके स्कीम, ग्रामीण और अर्बन। और 5 लाख कम्युनिटी टॉयलेट भी डेवलप की गई इसके तहत सो दैट इट कुड प्रोवाइड एवरी हाउस होल्ड विद द फैसिलिटी ऑफ टॉयलेट्स। नाउ द स्वच्छ भारत मिशन है दैट इज अ सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन IHHL भी कहते हैं जिसको, जहाँ पे लोगों को 10,000 से लेकर के 12,000 रुपए तक की फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट दे रही थी। Now the total aim was to cohort the people from the Mahatma Gandhi dreams that जो open defecation free area है that India should achieve at the earliest, और clean और hygiene एक बहुत ही important issue है इंडिया में। So आप अगर ऐसे लिख रहे हैं जनरल स्टडीज पेपर 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें। Now main objective of the Swachh Bharat mission, so it bring improvement in the general quality of the rural areas, promoting cleanliness, hygiene और eliminating the open defections। उसके साथ जो सैनिटेशन की कवरेज है उसको एक्सक्लेरेट करना और जो हमारी PRI है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक सस्टेनेबल अवेयरनेस कैंपेन भी प्रोवाइड करना।
इनकरेज करना ताकि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, इकोलॉजिकल सेफ टेक्नोलॉजीज हैं, उनको प्रमोट किया जाए, कम्युनिटी मैनेज की जाए थ्रू फोकसिंग ऑन द साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ओवरऑल क्लीननेस ऑफ द रूरल एरिया। क्लीननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके वजह से जो बेसिक जो डिजीजेज हैं लाइक डायरिया और जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रूरल एरिया में, उसको तुरंत ही खत्म किया जा सकता है। Now, creating a positive impact on the gender is again one of the important issues. If the toilets and the availability of toilet to each household is provided, the dignity of the women and gender bias is again improved. Now, cleanliness, water, sanitation and health की अगर बात करें तो कुछ 3 important component हैं water, sanitation और hygiene. This is the WASH initiatives. तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं. So the World Bank has estimated कि 21% of जो populations है that is having the communicable and element waterborne diseases, और diarrhea is one of the common biggest killer under the children. जो 5 साल के कम के बच्चे हैं उनको डायरिया की वजह से बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं इंडिया में। नियोनेटल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, निमोनिया, सेप्सिस, these are the disease which has been regularly witnessed by the India because why we do not have a good quality of water and sanitations. तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज हैं, पोलियो है, मलेरिया है, ये सारे प्रॉब्लम है जो सैनिटेशन और हाइजीन की वजह से इंडिया को विटनेस करनी पड़ रही है। एंड डेक्रीमेंटल मदर्स एंड न्यू बॉर्न हैज लेड टू द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज, राइट। तो बात करें अगर एक्सपैंडिंग सैनिटेशन कवरेज की, तो अंडर स्वच्छ भारत मिशन जो सैनिटेशन की कवरेज है वो 39% तक 2014 में थी, बट जो अभी के जो टारगेट्स हैं वो अक्टूबर 2019 तक 100% की रही है। वी हैव ऑलमोस्ट अचीव द टारगेट बट 100% स्टिल इज नॉट बीइंग अचीव्ड। नो एडिशनली अगर बात करें जो परसेप्शन डिफरेंस है दैट इज अगेंस्ट विद रिगार्ड्स टू द पब्लिक टॉयलेट। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी लेवरेज भी देने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के थ्रू जो 57,000 टॉयलेट्स बनाने हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स में, या फिर गूगल मैप के साथ इंटीग्रेट करना उन सारे हॉस्पिटल्स जो टॉयलेट्स हैं, दैट वुड बी अगेन इंपॉर्टेंट। एंड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज ऑल्सो बी मेड इन द एरिया ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो मैंने आपको पहले बताया 66% की टारगेट पहले हो चुकी है। नाउ वी आर मूविंग एंड चेजिंग द टारगेट ऑफ 96%। एंड इनफैक्ट जो रूरल सैनिटेशन कवरेज है दैट इज एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट अमंग द ऑल नेशनल डिस्ट्रिक्ट कवरेजेस। तो क्या इम्पैक्ट है इसके हेल्थ आउटकम्स पे? यूनिसेफ ने भी इसके एस्टिमेशंस दी हैं कि ओडीएफ ना होने की वजह से ऑलमोस्ट 50,000 पर ईयर अकाउंट अवॉइडेड फॉर द मेडिकल कॉस्ट, लेस 6 पीपल वुड बी अगेन देयर। सो अगर हर जगह पे अगर हर विलेज ओडीएफ फ्री हो जाए तो हर एक विलेज अपने विलेज में 50,000 रुपीज सेव कर सकती है, जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस में लोगों को करना पड़ता है। सिमिलरली स्टडी कंडक्टेड बाय द मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाउंडेशन है ये, उनके मुताबिक जो डायरिया है दैट अकाउंट फॉर 46% ऑफ द लोअर चिल्ड्रन एंड कंपेयर टू द विलेज विच हैज नॉट अचीव्ड येट द स्टेटस ऑफ द ओडीएफ, लाइक जो ओपन डिफेक्शन फ्री की जो स्टेटस है उसको अचीव करने के लिए भी वी स्टिल नीड सम टाइम। जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है 2030 तक का, बट ऑलमोस्ट वी हैव अचीव्ड 90 से ज़्यादा परसेंटेज तक है। होपफुली वी विल बी अचीविंग दैट एंटायर टारगेट बाय 2025। नाउ इंप्रूविंग एक्सेस टू द गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, तो नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट किया है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया पहले। नाउ दिस इज इन 2017 द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रूरल डेयरी हाउसहोल्ड प्रोग्राम वाज अगेन बीइंग प्रोवाइडेड, और 2019 में हर घर जल ही जय, दिस इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था विद अ जल जीवन मिशन टू प्रोवाइड pipeline water by rural households in 2024, right? And under the program, annual target has been defined to the state and districts. और इसके अलावा जो पाइपलाइन वाटर है इन द कंट्री दैट हैज अ जल जीवन मिशन एंड फोकस ऑन द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड वाटर रिसाइकलिंग, राइट? नाउ कमिंग टू द स्टेटस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, बिकॉज इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप हर लोगों को, सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन भी प्रोवाइड करवाएं। Now, adequate provisions of water, sanitation and hygiene is very crucial in the sustainable development of era. और present worldwide में COVID-19 की outbreak के बाद अगर चीज़ों को देखें तो it has demonstrated the critical role of sanitation, hygiene and access to water, protecting human health and preventing from the contaminated diseases.
Now, providing safe water and sanitation facilities, तो जो primary responsibility है, that is to provide safe drinking water and sanitation facility that rest with the state government. I've told you, sanitation और ये सारी चीजें जो हैं वो state government के अंदर आती है under the Schedule 7. Now, they take the steps to augment the conservation and efficient water management of the resources. The efforts of the state government are again supported and supplemented by the union government, जहाँ पे वो union government के साथ उनको financially assistance मिलती है हर state government को, और वो सारी चीज़ों को implement करते हैं at ground level so that the target is being achieved. Now, गवर्नमेंट के कुछ और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जिसको अब चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना दिया गया, ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स थी, जहां पे इस मिनिस्ट्री को एक डेडिकेटेड काम दिया गया अंडर वन रूफ, दैट ऑल अदर डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री विच इज वर्किंग फॉर द वाटर वुड बी मर्ज्ड इन द सिंगल मिनिस्ट्री दैट वुड बी नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. और रूरल डिपार्टमेंट की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एम इन प्रोवाइडिंग सैनिटेशन इन रूरल एरिया एज वेल इन द अर्बन एरियाज. Now, status of safe drinking water as per the latest population census, 82.7% of the population are living in the rural areas and they have access to the safe and drinking water. हैंड पंप्स या ट्यूबवेल के थ्रू उनको वाटर मिलती है. अर्बन एरियाज में ये परसेंटेज 85.5% के आसपास है. Now, status of rural sanitation की और अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो it was launched by the Central Rural National Program 1986 में. उसके बाद द कवरेज हैज ग्रेजुअली इंक्रीज इन 1991 और कुछ इंप्रूवमेंट देखी गई थी इन 2011 वेयर द अचीवमेंट वाज 32.7%. और जो सरकार की कोशिश थी, ड्यू टू स्पेशल फोकस ऑन द सैनिटेशन एंड क्लीननेस, कंट्री हैज मेड अ रिमार्केबल इन टर्म्स ऑफ अचीविंग द क्लीननेस टारगेट एंड द प्रैक्टिस ऑफ ऑफन डिफेक्शन वाज मेड so less that the government tried to put all its effort to make जो टॉयलेट्स हैं वो सारे एरियाज में टॉयलेट को बनाया जा सके. Now, all the villages are spread in the 36 districts and the union territories were declared as the open defecation was 2nd November 2019. And thus 55 crore of the rural people has gained sanitation in the 5 year, right? So we're still chasing. कुछ ऐसे जगह हैं जो अभी बच रहे हैं. ऑलमोस्ट 98% 95% तक टारगेट अचीव हो गई है. गवर्नमेंट के मुताबिक 100% हुई है, बट प्रैक्टिकली कुछ जगह पे अभी काम करना बचा हुआ है. नाउ, इकोनॉमिक एंड हेल्थ इम्पैक्ट. तो सबसे पहली क्वालिटी, दैट इज वॉश वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन इम्प्रूविंग द हेल्थ आउटकम, रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्टनिंग 48% ऑफ द चिल्ड्रन डेथ एंड 1 लाख ऑफ द एनुअली. एंड ड्यू टू दिस बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 30 मिलियन लोग हैं जो कि वाटर ब्रोन डिजीजेस से भी सफर कर रहे हैं हर साल. And the resulting economic cost is almost 6% of the GDP, which I've told you in the beginning. This estimates you can write in the examination because this is quoted by the World Bank estimates. And UNICEF is reported to have financial and economic impact on the Swachh Bharat mission, that is to provide the ODF in the each household. और इसके लिए सेम टाइम और वैल्यू भी बनाई गई है ताकि जो मेडिकल कॉस्ट को अवॉइड करके ODF फ्री या बिल्डिंग ऑफ टॉयलेट्स में लगाया जा सकता है. Now, गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं. ड्रिंकिंग वाटर मिशन हैज स्टार्टेड टू फोकसेस ऑन द राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग मिशन 1991 में. उसके बाद सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम लेकर के आई गवर्नमेंट 1986 में, जहाँ पे 80% तक असिस्टेंस दिया गया BPL फैमिलीज को. But this program has failed due to some of the reasons and the proper toilets which was being to be built, तो lack of awareness की वजह से ये पूरी तरह से अचीव नहीं हो पाई. फिर गवर्नमेंट ने टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम लाया 1999 में और इस हद तक दे हैव स्टार्टेड टू अचीव द सैनिटरी फैसिलिटी ग्रेजुअली. यहाँ पे इस टाइम तक भी पूरी तरह से चीज़ें अचीव नहीं हुई थी, बट समहाउ इंडिया वाज मेकिंग द प्रोग्रेस. So this is all about the initiative, right? So you can read about the government initiative. This is the detail. मैंने आपको फिर इसके बाद आप इंटीग्रेट कर सकते हैं with the निर्मल भारत अभियान और उसके बाद भी जो स्वच्छ भारत मिशन है. You can integrate that. These are the important government initiatives that you can write in the examination. And those of you who are new to our channel, we are having a daily topic-wise news analysis. This is on the daily basis from the Hindu and Indian Express. So what you can do, you can come and watch this on the daily basis so that you can save a lot of time. And I sincerely thank you for listening to this video. अगर कोई भी concern हो तो हमें ज़रूर बताएं. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.